Good Good morning, all morning, of all. you. Good Good morning, morning. Pratna Ben. Good morning, Barsha Good Ben. morning. Good Good morning. everyone. કેક મોકલાયો Good ખાધો morning. તો? Good morning. Ah, good morning, Lata Ben. Good morning, Bharat Bhai. મેં કીધું આજે Good તમે morning. ખાધો કે Very good નહીં? morning. Good morning everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Good everyone. morning. Cha. Good morning, Sanjay Good sir. morning, Sanjay everyone. sir, good morning. Sanjay sir, Morning, good Shakti morning. sir. Shakti sir, Ashwin good sir, good morning. morning. Good Good morning. morning. Good morning, all of you. Good morning. જયસરનો બર્થડે નથી ને આજે? Good No, no, morning, no. Morning, everyone. Rajnikant. Hi. ગુડ મોર્નિંગ જયસન કાકા. Good morning, Desan Morning, Kaka. Rajnikant bhai. ગુડ Hi. મોર્નિંગ. Good Kaka. ગુડ મોર્નિંગ Shweta લતા didi. બેન. Good morning. Good morning, Varsaben. Good morning, Vasha ગુડ ben, મોર્નિંગ. Good Lata didi. morning. ગુડ મોર્નિંગ. ઓલ ઓફ યુ ગુડ મોર્નિંગ. Good Good morning, all. morning. Morning. Good Good morning, all of morning. you. Morning, Bharat I bhai. muted to all. Good, Good morning. Good morning, Jason Bye. Good morning, all. good Good morning. morning. Good morning, all of you, and welcome. Please rename yourself. Please once check your name, and please switch on your video. Okay. Good morning. So let's start. Today I am invite Jignesh. Unmute yourself. Today I am invite to Jayesh Golakia. Welcome, Jayesh. Okay, 1 minute. Jayesh is not there. Something happening. Jignesh, Yes. can you manage 2 to 3 minutes? Some Yes, yes. Jayesh have some network problem. Okay. Yes, over to you. Okay. Please share the PPT. Yes, please give 1 minute. I'll share. Yes. Yes, next. Yeah, welcome all of you. Yes, next, Ajay. And can you call to Jayesh? Yes. What happened? Yes, intention to empower every individual by teaching him or English. Right? And yeah. Next, Ajay. Just second. I need 1 minute. Okay, can I use that time till then? Yes, yes. Thank you, Vandana ma'am. Okay, most welcome. So Satish, roll number 14, I quickly wanted to check, do you understand Hindi? Okay, 1 you minute. have I to, unmute first. one Yes. second, I'm unmuting. I'll do that, Ajay ji, you can check on Jayesh. Hey, Jayesh comes around 2 to 3 minutes. Hello. He have some network issue. Okay. Satish, do you understand Hindi? Yes, ma'am. Ha. Okay, perfect. Good That's morning. all I wanted to check. Okay. I wanted to really appreciate Sanjay
पटेल एंड अर्चना मोदी. मैं अपने ग्रुप के बारे में कभी भी नहीं बोलती हूँ, बट मैं बोलना चाहती हूँ कि उनने काफ़ी कल टेंसेस पे काम करके और वो किया है. एंड मिहिर, इफ मिहिर इज देयर, थैंक यू सो मच. तो जो आपने वो बोला था आप बना के भेजोगे, वो आपने ऑलरेडी बना के भेज दिया है, जिसकी वजह से हम लोग उस पर आगे काम करके और सबको शेयर कर पाएंगे विद इन अ वीक और समथिंग. सो गुड जॉब ऑल थ्री ऑफ यू. ओके जिग्नेश, ओवर टू यू. Okay, we wait for Jayesh. Hey, Munna Jayesh ma'am, if already you- come. Okay. Yes, Jayesh, good morning. या गुड मॉर्निंग एंड आई एम रियली सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा था. सो रियली सॉरी फॉर दैट. या एंड माय वॉइस इज क्लियर. Yes, Jayesh, clear. ओके, थैंक यू. सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू. इस प्यारी सी मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ आज का क्लास शुरू किया जाए. ओके, सो पीपीटी मैं शेयर करता हूँ. जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज थोड़ा सा चेंजेस किया है पीपीटी में, इसलिए मैं पीपीटी शेयर करता हूँ. या 12 जुलाई. ओके, तो आज हम सीखने वाले एक नया फ्रेश टॉपिक, और वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हम डेली लाइफ में वो यूज करते हैं. ऐसा टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं. आइए तो हम देखते हैं कौन सा टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं. सो ये पीपीटी दिख रही है? Yes. ओके, वेलकम नोट है. आप सभी को ये वेलकम नोट फॉलो करनी है. intention to empower every individual by teaching him or her English, that is English Club's intention. And you have to also think that why should you want to learn English. आपको क्यों इंग्लिश सीखना चाहिए, आप या तो आपको क्यों सीखना है वो भी आपको याद रखना है. why do you want to learn English. इसी के साथ आज शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस. हमने ये पैसिव वॉइस का जब वर्ब सिखा रहे थे तब एक बार जिक्र किया था कि पैसिव वॉइस का हम सीखेंगे तब पढ़ाएंगे. वर्ब का एक फॉर्म था, कौन सा फॉर्म था, क्या था, वो हम आगे देखते हैं. ओके, यस. इससे पहले मैं ये दिखा दूं पैसिव वॉइस क्या है, वो बता दो आपको. तो एक क्लास शुरू हुआ तब एक किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं भूल गया उसका नाम, कि पानी माराથી ઢોળાઈ ગયું હતું. તો મારાથી પાણી ઢોળાઈ ગયું હતું એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય, એવો કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછેલો હતો. તો આવા બધા સેન્ટેન્સ હોય, જેમ કે હું એમ કહું કે હું સફરજન ખાઉં છું અને એને જ મારે બીજી રીતે કહેવું હોય તો સફરજન મારા દ્વારા ખાવામાં આવે છે. કહી શકાય કે એમાં મિસ્ટેક છે? सेम है ना. जो ऐसा बहुत सारा सेंटेंस है. जैसे मैं बोलूं कि मैं बुक पढ़ता हूँ और बुक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, तो इसमें कोई गलती है? सेम ही है. तो अब मैं बोलूं जब बुक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, तब हम किसको इम्पोर्टेंट देते हैं? बुक को इम्पोर्टेंट देते हैं. तो ऐसे सब सेंटेंस है, उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं. और एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि मैं पिज्जा खाता हूँ, या तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में लेके मैंने पिज्जा खाया था. अब इसका मैं ऐसा बोलूं कि पिज्जा मेरे द्वारा खाया गया था, तो इसमें कुछ गलती है? सेम ही है. तो इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस. जो पहली कैटेगरी है इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस. वो तो हमने टेंस कैटेगरी में देख लिया. टेंस कैटेगरी में, टेंस में हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं वो सब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है. मतलब एक्टिव वॉइस मतलब जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट एक्शन कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है. जैसे मैं बोलूं मैं पिज्जा खाता हूँ, तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ और पिज्जा खाने का काम कर रहा हूँ, तो वो हो गया एक्टिव वॉइस. पर पिज्जा मेरे द्वारा खाया जाता है, तो वो हो गया पैसिव वॉइस. और आगे एग्जांपल से हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस हम कैसे सेंटेंस में बनाते हैं. इससे पहले रूल्स फॉर प्रोनाउंस इन एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जेशन. एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जेशन का थोड़ा प्रोनाउंस का रूल्स क्या है आप सबको पता है. प्रोनाउन किसे बोलते हैं? नाम के बदले में जो यूज होता है, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, वो सब क्या है? प्रोनाउन है. तो एक कोष्टक हमें याद है, हमने प्रोनाउन सीखा तब याद था कि आई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? मी है. आई, मी, माई,
माई सेल्फ, माई सेल्फ, ऐसा आखा पूरा जो टेबल था हमने पढ़ा था ना प्रोनाउन वाले लेक्चर में, यू, योर्स, वी, अस, आर्स, they, them, their self, their selves, ऐसे पूरा टेबल था। तो वही है कि आई का आई है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी। तो अगर एक्टिव वॉइस में हम आई यूज करते हैं तो इसकी जगह पे पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों होगा वो मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्यों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। पर आपको ये फिर से एक रिवीजन के तौर पे आपको याद रखना है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यू का यू, वी का अस, they का them और it का its। और ये तो आपको सबको पता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एम, यू आर, ही शी इट इज। आई के साथ एम होगा, यू के साथ आर होगा, ही शी इट के साथ इज होगा। अगर सिंगुलर नाम है जैसे जॉन है, सारा है, तो उसके साथ भी इज लगेगा। अगर प्लूरल है तो वी के साथ आर होगा, यू के साथ आर होगा और दे के साथ भी आर होगा। ये सब आपको पता है, सिर्फ रिवीजन के तौर पे था ये। ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? अगर पैसिव वॉइस सीखना है हमें तो ऑब्जेक्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? સબ્જેક્ટ દ્વારા કરવામાં આવતી કામની અસર જે વસ્તુ કે વ્યક્તિ ઉપર પડે તેને ઓબ્જેક્ટ કહેવાય છે। સબ્જેક્ટ દ્વારા જે કામ કરવામાં આવે એ કામની અસર, मतलब सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस वस्तु या चीज, जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर से एक बार, सब्जेक्ट जो काम करता है उस काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक एग्जांपल से हम ज्यादा आपको समझ में आएगा। ही थ्रू अ बुक, ये भी हम ऑब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, आप एज ए रिवीजन ही है। ही थ्रू अ बुक, बॉल, उसने बॉल फेंका। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही है, थ्रू है वो वर्ब है। तब इसका सब्जेक्ट द्वारा जो क्रिया काम किया जा रहा है इसकी असर किस पर पड़ती है? बॉल पर। इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा। तो ये एक्शन डायरेक्ट जो सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन हो रही है वो एक्शन रिसीव कौन करता है? बॉल। तो बॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट द्वारा થતા કામની અસર કોના ઉપર પડે? બોલ ઉપર। તો બોલ ઓબ્જેક્ટ છે અહીંયા। I ate an apple, તો એપલ ઉપર અસર પડશે હું ખાસ તો डायरेक्ट, तो ये पण ऑब्जेक्ट થયું। राम इज अ गुड बॉय, यस। यहाँ मुझे बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट द्वारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ तो बताया जाए राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो बहुत सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। सब्जेक्ट और वर्ब हो गए होगा पर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। देखो सब्जेक्ट राम है, वर्ब इज है, और ये कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है ऑब्जेक्ट नहीं है तो। टू कंप्लीट सेंटेंस जो लगता है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ही थ्रू अ बॉल एट मी, देखो इसमें थोड़ा पहले था ही थ्रू अ बॉल, उसने मेरे तरफ बॉल फेंकी, सॉरी उसने बॉल फेंकी। अब बोला गया ही थ्रू बॉल एट मी, उसने मेरी तरफ बॉल फेंकी। तो कई कई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो गए। कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट? वाक्यમાં થતી ક્રિયા એટલે કે વર્બ ને, વાક્યમાં થતી ક્રિયા એટલે કે વર્બ ને વોટ અથવા whom થી પ્રશ્ન પૂછવાથી જે જવાબ મળે તેને કહેવાય ઓબ્જેક્ટ। તો અહીંયા શું ક્રિયા થાય છે? he threw a ball at me, એણે મારી तरफ बॉल फेंक्यो। હવે એને વોટ થી પ્રશ્ન પૂછો કે એણે મારી तरफ શું ફેંક્યું? તો બોલ। તો એક તો પહેલો ઓબ્જેક્ટ મળ્યો, વોટ થી પૂછું, પછી બીજું whom થી પૂછે કે એણે મારી तरफ, એણે he threw a ball, whom કોની तरफ એણે બોલ, whom એટલે કોનું, એણે કોની तरफ બોલ ફેંક્યો? તો મારી तरफ, मी। तो मी શું મળ્યો આપણને? ઓબ્જેક્ટ। તો કોઈ કોઈ સેન્ટેન્સમાં બે પણ ઓબ્જેક્ટ હોઈ શકે। आयांश इज सो क्यूट, आयांश इज सो क्यूट, आयांश बहुत ही क्यूट है। तो इसमें कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इतना इनफ है, आपको ऑब्जेक्ट किसे बोलते हो समझ आ गया होगा। अब एक बार देख लेते हैं वर्ब। वर्ब का बहुत मेन वर्ब एक्शन वर्ब होता है, इसको मेन वर्ब बोलते हैं। एक और भी टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट की जरूरत मतलब यहाँ आप एक बात नोट कर रहे हो, बार बार ऑब्जेक्ट पर मैं फोकस कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ आगे आपको पता चलेगा, पर मैं बार बार ऑब्जेक्ट का पर फोकस कर रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो क्रिया हो रही है, मतलब जो वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट की अगर जरूरत है तो इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। द एक्शन दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, मतलब जो क्रिया है वो क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होगा जो वो क्रिया को रिसीव कर रहा होगा। सिंपल सेंटेंस में बताऊं तो
क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट जरूरी है, होगा ही होगा, तो ऐसी क्रिया को ट्रांजिटिव क्रिया बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। राम मूव द चेयर, राम ने चेयर मूव की। मितेश पुश मितांशी, मितेश ने मितांशी को धक्का दिया। अगर मैं मितेश पुश बोलूं तो मितेश ने धक्का दिया, सेंटेंस पूरा नहीं होगा। जब मैं बोलूं मितांशी तब पूरा होगा। तो ये मूव और पुश ये सब ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अब इंट्रांजिटिव वर्ब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, द एक्शन दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। मतलब ऐसा वर्ब, ऐसी एक्शन मतलब वर्ब, ऐसी एक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसे हम इंट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे मैं बोलूं डैड स्माइल, पापा हंसे, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे इंट्रांजिटिव बोलते हैं। यशवी वाज वीपिंग, मतलब यशवी रो रही थी, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वीपिंग क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब और ये ऑब्जेक्ट वो सब हमने इसलिए सीखा क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सब्जेक्ट को नहीं। जैसे पहले मैंने बोला मैं सफरजन खा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस हो रहा, खाता हूँ एक्टिव वॉइस का हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट अब मैं सफरजन को आगे ले रहा हूँ, सफरजन ऑब्जेक्ट है, उसको इंपॉर्टेंट देके सेंटेंस बना रहा हूँ कि सफरजन मेरे द्वारा खाया जाता है। तो सफरजन मेरे द्वारा खाया जाता है, तो हमने किसको इंपॉर्टेंट दिया, ऑब्जेक्ट को। अब आप सोचो कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा? बनेगा ही नहीं, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आती ही नहीं है। इसलिए हमने ये देखा कि इंट्रांजिटिव वर्ब अगर होगी तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं ये पैसिव वॉइस की सेंटेंस पैटर्न क्या है। देखो ये पैसिव वॉइस पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के देखते हैं। टोटल हमने 12 टेंस पढ़ चुके हैं। 12 टेंस में कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस और कंटिन्यूअस परफेक्ट तीनों टेंस, वो 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनते। इसके अलावा और 8 टेंस बचे, वो 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनते हैं। तो अब हमें पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस की आप सब जानते हो, सब्जेक्ट वर्ब, इसके साथ अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है एस के एस लगेगा, ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। ऑब्जेक्ट प्लस देखो एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय के साथ सब्जेक्ट होगा, बाय लगा के, मेरे द्वारा, मैंने बोला ना सफरजन मेरे द्वारा खाया जाता है, तो बाय मी, तो ये बाय और फिर सब्जेक्ट आएगा। अब ये आपको ये याद रखना है कि एम इज आर तो हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में देखा कि ही इज स्लीपिंग, पर स्लीपिंग स्लीप वर्ब के साथ आईएनजी था। अब यहाँ ऑलवेज पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। पैसिव वॉइस कोई भी टेंस का पैसिव वॉइस है, वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही होगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट लास्ट में से पहले आ जाएगा, फिर एम इज आर, वो एम कहाँ लगेगा, इज कहाँ, आर कहाँ हमने देखा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय लगा के सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर मी है तो वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आई हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में, सब्जेक्टिव पार्ट में आई है, वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट में आई है, वो लास्ट में चला जाएगा बाय के साथ, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई का क्या है, मी, वो भी अगर टेबल देखा हो मी हो जाएगा। अगर एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये अफर्मेटिव की हो गई। नेगेटिव सेंटेंस की हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पता है सब्जेक्ट के साथ डू डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो इसमें भी सिंपल है, ऑब्जेक्ट एम इज आर नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नार्थ वाक्य, प्रश्नार्थ में हम डू डज आगे ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसमें डू डज की जगह पे हमें एम इज आर आगे ले लेना है, एम इज आर ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन, आप कुछ भी बोलते हो, प्रश्न डबल इंट्रोगेटिव या तो WH क्वेश्चन, तो इसमें सिर्फ डू डज के आगे WH लगा देना है, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में भी WH प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट। अब एग्जांपल से हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है माय मदर लव्स मी, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर SKES लगेगा, मेरी माँ मुझे लव करती है, माय मदर लव्स मी। तो अब सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया माय मदर, वर्ब हो गया लव और ऑब्जेक्ट हो गया मी, मुझे प्यार करती है। तो अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट पहला आ जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब हमने वो कोष्टक में देखा मी ऑब्जेक्ट है, पर उसको हम आगे लाएंगे तो सब्जेक्ट के पोजीशन पर लाएंगे,
तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? आई, तो आई हो जाएगा आई, फिर एम इज आर, आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई के बाद आएगा एम, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है वर्ब, तो लव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लव्ड, आई एम लव्ड बाय माय मदर, हो गया सेंटेंस, आई एम लव्ड बाय माय मदर। तो इसको बोलते हैं मेरी माँ मुझे प्यार करती है, और इसका गुजराती इसका हिंदी होता है आई एम लव्ड, मुझे प्यार किया जाता है बाय माय मदर, मैं मेरी माँ के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है। समझ रहे हो सब? एक और एग्जांपल देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखते हैं। देखो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, तो इसमें लास्ट में ताते ती तू वो सब आएगा, वो लेटर लिखते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, तो मेरी माँ वो लेटर लिखते हैं। तो अभी इसका बनाना है हमें, तो ये लेटर है वो कहाँ सब्जेक्ट पे चला जाएगा, तो अ लेटर, इसके बाद लेटर के साथ क्या आएगा? एम इज आर में से अ लेटर है तो इज, अ लेटर इज, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट की हो जाएगी रिटन, अ लेटर इज रिटन, फिर बाय। अब यहाँ सब्जेक्टिव पार्ट में ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हिम, आगे कोष्टक में देखा ना, तो वो हिम हो जाएगा कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखता है, अ लेटर इज रिटन मतलब पत्र लिखा जाता है, बाय हिम उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये हो गया पैसिव वॉइस। ये रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, अब कौन बनाएगा ये सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस? प्लीज रेज योर हैंड। यस, अनम्यूट कीजिए अजय भाई। यस उर्वशी। या उर्वशी। See, birthday is celebrated by Rajni. ओके, अब यस शी सेलिब्रेट, शी के बाद क्या बोला? See, birthday शी बर्थडे, ओके, शी बर्थडे is celebrated by Rajni. इज सेलिब्रेटेड बाय रजनी, ओके। अब एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, अगर सिर्फ हर बर्थडे है ना, तो इसको आप क्वेश्चन पूछो कि रजनी सेलिब्रेट हर बर्थडे, रजनी क्या करता है, रजनी શું કરે છે, તો રજની શું કરે છે કે એનો બર્થડે સેલિબ્રેટ કરે છે, તો આખું ઓબ્જેક્ટ થશે હર બર્થડે। ખાલી હર હોત ને તો એ ઓબ્જેક્ટમાં સબ્જેક્ટમાં આવે ને તો शी થઈ જાત, પણ અહીંયા હર બર્થડે આખું ઓબ્જેક્ટ છે, તો આખું જ્યારે ઓબ્જેક્ટ હોય ને હર બર્થડે, ત્યારે હરનું शी નહીં થાય, ખાલી અહીંયા સુધી હોત રજની સેલિબ્રેટ હર, मतलब सेलिब्रेट हर तो सेंटेंस अधूरू रहे, पण અહીં કેવું છે ખાલી માય મધર લવ મી, આગળ કઈ નથી, તો ખાલી મી છે ને તો એ સબ્જેક્ટિવ પાર્ટમાં આવશે ને તો આ થશે, પણ હર બર્થડે આખું ઓબ્જેક્ટ છે તો એ ચેન્જ નહીં થાય, હર બર્થડે જ આવશે। शी બર્થડे એ સેન્ટેન્સ બરોબર થશે નહીં થાય, शी બર્થડે હર બર્થડે જ સેન્ટેન્સ બરોબર થશે, એટલે સેન્ટેન્સ સાચું છે પણ આવશે હર બર્થડે ઇઝ સેલિબ્રેટેડ બાય રજની। એટલે ખાલી હર હોય ને તો शी થાય, પણ હર બર્થડે હર ની સાથે આખું સેન્ટેન્સ હશે ઓબ્જેક્ટમાં, તો આખું એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે। યસ, who will make this sentence in passive voice? Teachers do not punish students nowadays. फिलहाल मतलब अभी के टाइम पे टीचर स्टूडेंट को पनिश नहीं करते हैं। या who is there? अजय। अभी के टाइम पे मतलब nowadays टीचर्स स्टूडेंट्स को पनिश नहीं करते। यस सतीश। Students are not punished by teachers nowadays. Punished by teacher. Perfect. By yes, perfect. Nowadays. Students are not punished by teachers nowadays. आज के मतलब students are not punished, मतलब स्टूडेंट्स को पनिश नहीं किया जाता है, किसके द्वारा? बाय टीचर्स, टीचर्स के द्वारा। nowadays मतलब स्टूडेंट्स को पनिश नहीं किया जाता है। एक और है, आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे। वाटर मतलब पानी पाना, एक वो भी इसका वर्ब है वाटर, पानी देना, पौधे को हम पानी देते हैं उसको बोलते हैं वाटर। आई डू नॉट वाटर प्लांट्स मतलब एवरी डे, मैं हर रोज प्लांट्स को पानी नहीं देता हूँ। यस नरेश। नरेश। हेलो। यस नरेश, यू आर ऑडिबल। ओके। सबसे पहले देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, उसको हमें आगे ले जाना है ऑब्जेक्ट को। प्लांट्स। फिर एम इज
या तो इसको आगे ले जाओ, प्लांट्स 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 फिर प्लांट्स के बाद ये सेंटेंस पैटर्न देखो, ऑब्जेक्ट आगे ले गया, फिर एमिजार, और नेगेटिव है तो एमिजार के बाद नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय के साथ सब्जेक्ट। तो plant प्लांट्स is not watered ओके, by me every day. प्लांट ओके, प्लांट इज नॉट वाटर्ड बाय मी एवरी डे। अब देखो Plants प्लांट्स are, plants प्लूरल are है आएगा, sorry. या आर आएगा प्लांट्स के साथ। तो प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड, वाटर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वाटर्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म होगी। प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाय मी, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? मी। देखो मी का हमने सब्जेक्ट में लिया तो आई हो गया, ऐसे आई का ऑब्जेक्ट में ले गए तो मी हो जाएगा। प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाय मी एवरी डे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस पैटर्न। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, सिर्फ हमने डू डज आगे ले लिया। हम प्रश्न पूछते हैं, डू यू प्ले सब्जी, क्या सॉरी पबजी, सब्जी बोला गया है मेरे से, क्या आप पबजी खेलते हो? अब ये कौन बनाएगा सेंटेंस? कुछ नहीं करना है, सेंटेंस पैटर्न है, इसी हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है। बस ऑब्जेक्ट क्या है वो ढूंढना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है तो एम इज आर आगे आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय के साथ सब्जेक्ट। या अजय, हु इज देयर? Trusha, let's give Trusha an opportunity. ओके त्रुषा। Is PUBG played by you? इज पबजी Played by you? played by you? perfect. is PUBG played by you? क्वेश्चन मार्क, परफेक्ट। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमने क्या किया, अब इसमें इसका मैं क्वेश्चन वाला है, मतलब इंट्रोगेटिव, इसको सिर्फ पॉजिटिव बनाना है। तो यू प्ले पबजी, आप पबजी खेलते हो, तो इसका पबजी इज प्लेड बाय यू। अब क्वेश्चन मार्क बनाना है तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे लेते हैं, तो यहाँ इज ले लिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू ले लेते या तो डज ले लेते, अगर यहाँ का ही शीट या नाम होता तो डज ले लेते और देते डज शी वॉश योर क्लॉथ्स, क्या शी वॉश योर क्लॉथ्स, क्या वो आपके क्लॉथ्स धोते हैं? या हु विल मेक दिस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस? या अजय, हु इज देयर? तरुणा। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, सब्जेक्ट को बोलते हैं भाई बहुत तूने मनमानी कर ली एक्टिव वॉइस में, अब तेरा स्थान हम पीछे ले जा रहे हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट देके उसको हम आगे ले रहे हैं। तो आपको वही देखना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट कैसे देखा जाता है वो हमने आगे देखा। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है तरुणा? इज ऑब्जेक्ट है? नहीं क्लॉथ। ओके, क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है। हमने उस आगे वाले सेंटेंस, हर बर्थडे वाले सेंटेंस में देखा था सिर्फ क्लॉथ ऑब्जेक्ट है। योर क्लॉथ्स, यस, पूरा वो ऑब्जेक्ट है। योर क्लॉथ्स वो ऑब्जेक्ट है। ओके परफेक्ट, योर क्लॉथ्स। फिर अब सेंटेंस बनेगा कैसे? इज ओके, इसके बाद योर थर्ड फॉर्म क्लॉथ था ને ईडी એટલે કઈ રીતના વંચાય ને યોર? नहीं, आप पहले वो देखो, थर्ड फॉर्म वर्ब को लगाना है। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। समझ गए? इज योर क्लॉथ washed, is your clothes washed, is your clothes washed washed, फिर by ओके परफेक्ट, by। अब she का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? is क्या? नहीं, is नहीं होगा, वो कोष्टक याद करो। she का him नहीं, वो तो he का him होगा। she का क्या होगा? her होगा ना। हर यस यस, she का हर होगा। अब आपने देखो ये क्लोथ्स सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। क्लोथ्स तो प्लूरल है तो इज आएगा या आर आएगा? आर आएगा। यस, तो आर योर क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर? ये तो कहीं जोई आर योर क्लोथ्स, या कोई बात नहीं, हमें वही छोटी छोटी चीज याद रखनी है। अब और एग्जांपल है, डू यू गिव फूड टू बेगर, क्या आप बेगर को फूड देते हो? देखो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप बेगर को फूड देते हो? या हु विल मेक दिस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस? जोत।
Yes. जिसको डिफिकल्ट लगता है, नहीं समझ में आता है, वो भी हैंड राइज कीजिए तो हम और समझते हैं। यस ज्योत। Yes. R. आर ओके। R. Beggar. आर बेगर। Give food by Give. you. ओके आर बे। अब आप सबसे पहले देखो, आपने एमिजार में से आर लगाया, फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है वो ढूंढो, ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट कौन सा है? Beggar. ओके अब आप ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? Object. What से ऑब्जेक्ट कैसे प्रश्न मिलता करके है? और whom से। हाँ तो अब देखो, जब भी सेंटेंस में आपको लगता है व्हाट से प्रश्न पूछो, डू यू गिव फूड, पहले क्वेश्चन मार्क निकाल दो। यू गिव फूड टू बेगर, आप बेगर को फूड देते हो, तो आप बेगर को क्या देते हो? फूड। व्हाट से प्रश्न पूछो तो कौन सा आपको मिला? बेगर मिला आपको ऑब्जेक्ट या फूड मिला? फूड। हाँ तो फूड ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो एम इज आर के बाद क्या आएगा? फूड। तो सबसे पहले फूड के साथ क्या लगेगा एम इज आर में से? इज। हाँ तो इज फूड। इज फूड गिव्ड बाय। गिव का गिव्ड नहीं होगा, गिवन होगा। इज फूड गिवन। गिवन बाय यू टू बेगर। अब इस अब यहाँ या आप लास्ट में भी लगा सकते हो पर साथ में भी लगा सकते हो। इज फूड गिवन टू बेगर बाय यू। इज फूड गिवन टू अ बेगर बाय यू। ऐसे भी लास्ट में भी टू अ बेगर लगा सकते हो पर साथ में भी लगा सकते हो। इज फूड गिवन टू अ बेगर बाय यू। और है डज योर मदर गिव यू मनी। या फटाफट अजय किसी को अनम्यूट करिए। यस अभी सतीश। WH या सतीश। Does your mother give you money? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? Money. Okay. Is money is money given okay. by you to your mother? Is money Given. is money given Is money given okay, अब आप to you देखो, by your mother? अब आप हमने पहले दे पूछा था क्या वो मतलब कोने थी प्रश्न पूछवाથી ऑब्जेक्ट મળે, तो खाली एक क्वेश्चन मार्क काढी नाखो खाली। योर मधर गिव यू मनी, તમારા મમ્મી गिव यू मनी તમને પૈસા આપે છે, તો મમ્મી કોને પૈસા આપે છે? તમને પૈસા આપે છે ને, तो ऑब्जेक्ट શું થશે? इसलिए हमने पहले देखा था ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है हमें। तो यू के साथ आर लगेगा, तो आर यू इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन मनी बाय योर मदर। आर यू गिवन मनी बाय योर मदर, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्ट के लिए हमें व्हाट या वोम दोनों दो में से एक से क्वेश्चन पूछना है, जो आंसर मिलेगा वो आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा। ओके। डू यू स्पिल द वाटर, ये किसी ने पूछा था, वो पानी मतलब पानी ढोळाई जाए छे, तो स्पिल मतलब पानी ढोळવું, तो डू यू ढोळવું स्पिल मतलब डू यू स्पिल द वाटर, શું તમે પાણી ઢોળો છો? क्या आप पानी फेंकते हो? या आरशी? यस सर। तो कैसे बनेगा ये? इज वाटर। इज वाटर का थर्ड फॉर्म नहीं पता। स्पिल्ड, ईडी लगेगा, स्पिल्ड। ओके। इज वाटर स्पिल्ड बाय यू। परफेक्ट। इज वाटर स्पिल्ड बाय यू। और लास्ट है डू यू लाइक चॉकलेट, तो ये हो जाएगा चॉकलेट सब ऑब्जेक्ट है तो चॉकलेट आगे आ जाएगा, सॉरी पर ये इंट्रोगेटिव है तो चॉकलेट के साथ इज लगेगा। अगर चॉकलेट्स होती प्लूरल होता तो आर हो जाएगा, हार होता, पर ये सिंगुलर है तो इज आएगा। इज के बाद चॉकलेट, इसके बाद होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक का होगा लाइक। इज चॉकलेट लाइक बाय यू, कि आपके द्वारा चॉकलेट पसंद की जाती है, ऐसा इसका होगा हिंदी। अब WH क्वेश्चन में कहीं कुछ बहुत इजी है, डू के आगे WH क्वेश्चन लगा दो
तो ये WH, तो यहाँ भी WH लगेगा, नीचे भी, पैसिव में भी। अगर मैं बोलूं क्या आप PUBG खेलते हो, पर मैं बोलूं आप PUBG क्यों खेलते हो, तो why do you play PUBG, तो यहाँ भी नीचे why लग जाएगा, why is PUBG played by you। अगर यहाँ does she wash your clothes, ये यहाँ एग्जांपल ही देख लेते हैं, why do you play PUBG, तो why लगाया सिर्फ आगे का, PUBG क्यों खेलते हो, तो नीचे भी why आ जाएगा, बाकी as it is सेम हुआ रहा है। why is PUBG played by you, where does she wash your clothes, मतलब वो आपका कपड़ा कहाँ धोती है, तो where हमने सिर्फ ऐड किया, तो नीचे भी where हो जाएगा, where are your clothes washed by her। ये ऊपर हमने जो इंट्रोगेटिव देखा वही है, does she wash your clothes, are your clothes washed by her, यहाँ वेर आया तो नीचे भी वेर आएगा। इस बहुत सिंपल है WH में। Why do you give food to beggar, आप बेगर को फिर फूड क्यों देते हो, तो यहाँ हो जाएगा Why is food given to a beggar by you। सिर्फ WH क्वेश्चन जो ऐड करते हैं वो नीचे भी ऐड होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। When does your mother give you money, आपके मम्मी आपको पैसा कब देती है, when से टाइम मिलेगा, तो यहाँ नीचे भी टाइम ऐड कर दिया। When are you given money by your mother, ये when निकाल दो तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। Does your mother give you money, तो इसका हो जाएगा Are you given money by your mother। अब with whom do you play cricket, आप किसके साथ क्रिकेट खेलते हो, with whom ऐड किया, बाकी ये था do you play cricket, तो इसका बनेगा cricket is, सॉरी डू है तो इसके लिए क्रिकेट के ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट के साथ इज लगेगा, तो इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, और विथ हुम है तो नीचे एज विथ हुम लगा देते हैं, विथ हुम इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, विथ हुम इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। और डू यू लाइक चॉकलेट, क्या आप चॉकलेट पसंद करते हो, इज चॉकलेट लाइक बाय यू, तो ये WH क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो पैसिव वॉइस में हम आगे एक और टेंस पढ़ना है हमें, पर हमारे पास टाइम नहीं है अभी, तो हम वो कल के लिए ही रखते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये टेंस आप एक सीख जाओगे ना तो आप सब टेंस आपको बहुत आसानी से सीख जाओगे। सिर्फ आपको ये सेंटेंस पैटर्न वही याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर प्लस मतलब ऑब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव है तो एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय लेके सब्जेक्ट, बाय के साथ सब्जेक्ट आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके 5 मिनट एक्सटेंड करके अगर हो सकते हैं तो हम कंप्लीट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस भी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ही चेंज है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस पैटर्न आपको पता है, सब्जेक्ट के साथ एम इज आर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट। या अर्चना मोदी का कुछ क्वेश्चन है इसको, या अर्चना आपको अनम्यूट किया गया है। सर मैं ये बोलती हूँ कि वो पैसिव वॉइस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखा, उसमें बाय ही आएगा कि कोई भी या बाई आएगा, क्योंकि इसमें हम बाई ही आएगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मैं सफरजन खाता हूँ और मेरे द्वारा सफरजन खाया जाता है, मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा के लिए बाई ही आएगा, मेरे द्वारा तो बाई ही आएगा। अब सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, एम इज आर प्लस क्रियापद का आईएनजी वाला रूप। अब इसका पैसिव में क्या चेंज होगा, देखो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, एम इज आर इसमें भी प्रेजेंट टेंस में है तो एम इज आर तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ अगर हम डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ले लेते हैं तो वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी थर्ड फॉर्म ले लेते थे, तो सिंपल और कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या रहता, इसलिए हमने यहाँ बीइंग ऐड किया है, बीइंग होगा, बी का आईएनजी वाला रूप बीइंग। तो जब भी बीच में बीइंग आता है तो आपको पता चलना चाहिए कि इसका एक्टिव वॉइस कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, एम इज आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका एक्टिव वॉइस है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। बाकी सेम है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें बीच में अगर आप बीइंग ऐड कर देते हो तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। सेम नेगेटिव में एम इज आर नॉट है, पर एम इज आर नॉट और इसके बाद बीइंग होगा। फिर इंट्रोगेटिव, इसमें एम इज आर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, और एम इज आर ऑब्जेक्ट बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट। और डबल इंट्रोगेटिव मतलब WH क्वेश्चन एम इज आर सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, इसका सेम एज इट इज जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा, WH क्वेश्चन एम इज आर ऑब्जेक्ट बीइंग, मतलब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे बीइंग होगा, सिर्फ बीइंग प्लस बाय के साथ सब्जेक्ट। हम एग्जांपल से देखते हैं,
ये सेंटेंस पैटर्न है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हो गया, अभी खेल रहा है, तो एम इज आर प्लस थर्ड क्रियापद का एनजी वाला रूप, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो कौन बनेगा इसका? यस संजय संजय। Cricket is playing. Cricket is being played by him. या परफेक्ट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो क्रिकेट खेला जा रहा है बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। या आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्या आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो? देखो इंट्रोगेटिव हो गया। यस कौन? ये आरशी। Yes, Archie. Now speak. Okay. Students. या आरशी। Students. The students are being teach. टीच का थर्ड फॉर्म होगा, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही होगा। पैसिव वॉइस में कभी भी कोई भी टेंस है, कुछ भी है, थर्ड फॉर्म ही होगा। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टीच नहीं होगा, टॉट होगा, टॉट, TAUGST, टॉट। The students are being taught. The students are being taught by teacher. फिर से एक बार बोल। By you. फिर से एक बार, the students are being taught by you. परफेक्ट। पर अब देखो, the students are being taught by you, अब ये तो यहाँ पॉजिटिव तो सेंटेंस है नहीं, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर सिर्फ इतना होता यू आर टीचिंग द स्टूडेंट, तो आपने जो बनाया वो सही था। यहाँ यू आर टीचिंग द स्टूडेंट नहीं है, आर यू टीचिंग स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव है, तो Are students इंट्रोगेटिव का पैसिव। यस teacher? यस, आर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय यू, इंट्रोगेटिव का पैसिव इंट्रोगेटिव ही रहेगा। यस, समवन इज रीडायरेक्टिंग यू। देखो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले बताओ ये आप कौन बनाएगा ये सेंटेंस? किसी ने नहीं बोला, उनको चांस दीजिए। Yes, but nobody raised hand except Satish. किसी को भी अनम्यूट करिए, किसी को भी करिए, वो सतीश और केयूर के अलावा। Yes, Nehal. Yes. You are being read. इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईडी लगेगा, रीडायरेक्टेड। Redirected by someone. ओके परफेक्ट। अब देखो someone मतलब कोई है, कौन है वो पता नहीं, someone मतलब कोई होगा, कुछ कोई भी हो सकता है, someone मतलब कोई તમને રીડાયરેક્ટ કરી રહ્યું છે, કોણ છે એ ખબર નથી, તો જ્યારે એક્ઝેક્ટ સબ્જેક્ટ નો આપેલો હોય ને ત્યારે બાય કરીને એ સબ્જેક્ટ લગાવવાની જરૂર નથી, ચાલશે। તો આનું તમે ખાલી એટલું બનાવો કે યુ આર બીંગ રીડાયરેક્ટેડ, તો પણ સાચું છે, બાય સમવન લગાવવાની જરૂર નથી, કેમ કે અહીંયા એક્ઝેક્ટ તમને ખબર નથી કોણ તમને રીડાયરેક્ટ કરી રહ્યું છે। અને આવું તમે કદાચ જ્યારે કોઈ લિંક ખોલો ને ત્યારે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર લખેલું આવે, તમે જોયું હોય તો, યુ આર બીંગ રીડાयरेक्टेड। बहुत सारी जगह पे आपने जब लिंक ओपन करते हो दूसरे पेज पर आपको ले जा रहे हैं, तब ऐसा लिखा हो रहा आता है यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। तो ये पैसिव वॉइस का है, इसका एक्टिव समवन इज रीडायरेक्टिव, कोई आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, तो यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। जयेश, यहाँ पे मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि हम अगर बाय समवन भी लगा दें तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। यू आर बीइंग डायरेक्टेड एंड यू आर बीइंग डायरेक्टेड बाय समवन, बोथ आर करेक्ट। both are correct, yes, but अगर नहीं लगाते हो तो चलेगा, पर लगाते हो तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। you are being redirected by someone, okay, she is calling you। अभी किसी एक लास्ट को अनम्यूट कर दीजिए जिसने अभी तक बोला ही नहीं है ऐसे पार्टिसिपेंट्स को। अर्चना मोदी। one minute। you are being called
by Called. her. Perfect. You are being called by her. ऐसे ही आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, आज किसी का बर्थडे और आप इसको पूछ रहे हो क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, या अभी किसी एक को अनम्यूट करिए, ये भी ले लेते हैं, क्या आप आज ही किसी का बर्थडे और आप इसको पूछते हो क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो? यस क्रिसा। इसका पैसिव बनाना है तो कैसे आप ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे के पैसिव बनाओगे? तृषा? Yes, sir. देखो ऑब्जेक्ट कौन? Is your birthday? Birthday. Your birthday. Is योर बर्थडे। Is your ऑब्जेक्ट को birthday? पहले लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है सबसे पहले वो सेंटेंस में ढूंढिए। ऑब्जेक्ट क्या है? Celebrate. सेलिब्रेट ऑब्जेक्ट है, सेलिब्रेटिंग your ऑब्जेक्ट birthday. है, योर बर्थडे ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले लो। योर बर्थडे। Is your birthday? ओके, इज योर बर्थडे। Is your birthday not being celebrated you? बाय यू आएगा। इज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू। नॉट ऑलवेज सब्जेक्ट के पीछे ही रहेगा, इसलिए बीइंग के पहले और सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये सब्जेक्ट बन गया और बर्थडे नॉट ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो इज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू, तो ये हो गया कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अब इसका WH क्वेश्चन भी आपको पता है WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मतलब ये इज है, इसके आगे मैं वाई लगा दूं कि आप अपना बर्थडे, आज आपका बर्थडे, आप क्यों नहीं करते हो? तो वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, तो वाई अगर मैं यहाँ लगाया 9th नंबर के आगे, वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, तो नीचे भी वाई लगेगा। वाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू, तो सिर्फ इतना WH क्वेश्चन ही आगे लगाना है और कुछ नहीं है। वाई इज ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेलता है, तो वाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम। वेयर आर यू टीचिंग द स्टूडेंट, आप स्टूडेंट को कहाँ पे पढ़ाते हो, तो वेयर आर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय यू। समझ रहे हो? सिर्फ बीइंग इसमें ऐड होगा, बाकी सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में यही डिफरेंस है। बीइंग आएगा तभी तो हमको पता चलेगा ना कि कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस है। तो ये सब आप देख सकते हो और प्रैक्टिस कर घर पे जाके प्रैक्टिस करना। आर यू बीइंग कॉल्ड बाय, मतलब इज शी कॉलिंग यू, क्या वो आपको बुला रही है, तो इसका आर यू बीइंग कॉल्ड बाय हर, आर यू बीइंग कॉल्ड बाय हर। ठीक है, ये सब WH क्वेश्चन है, वो आप प्रैक्टिस करना एक बार घर पे जाके। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप, और हम 2-3 दिन ये पैसिव वॉइस सीखेंगे। आज का होमवर्क है कन्वर्ट द बिलो सेंटेंसेस इनटू अ पैसिव वॉइस। ये आपको दिया गया है, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसमें मैं बता दूं, फर्स्ट और 7th ये दो है, वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का है। अगर आपको परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का आता है पैसिव वॉइस बनाना तो बनाना, अदरवाइज स्किप कर देना 1th और 7th। इसके अलावा जो 8 सेंटेंस है वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के, उसको आपको करना है। ठीक है, आज का होमवर्क है। ओके, सो व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक। इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। आज हमने 10 मिनट शायद एक्स्ट्रा ले लिया, 7 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। किसी का कुछ क्वेश्चन या डाउट है तो आज बहुत टाइम एक्स्ट्रा हो गया, हम एक का एक ले लेते हैं डाउट, फिर आप डायरेक्ट कल पूछ सकते हो या तो अपने कोच को कुछ भी आपको डाउट है तो पूछ लेना। यस ओम, ओम को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आज हमने पैसिव वॉइस सीखा और आज का क्लास एक्सीलेंट था। ओके, थैंक यू। किसी का कुछ डाउट है, कुछ भी है तो आप डायरेक्ट कोच को या मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी भी कोच को कॉल कर सकते हो, और कल हम आगे और देखेंगे। ठीक है, तो नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय। अजय, लेट्स अनम्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड से बाय बाय। बाय बाय।